He's revolutionized the e-commerce industry and empowered the students to achieve sales worth more than 50 crores and counting. तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज वो हमें सिखाने वाले हैं कैसे सेल्स की दुनिया में माहिर बने. Let's welcome the man who has turned dreams into reality, Mr. Niskarsh Sharma. All right, thank you so much, sir. Now I would like to hand over the stage to you. Hi guys. Hello. Hi guys. Hi guys. A very good morning to you. So guys, today we're going to be talking about building a powerful personal brand while selling effortlessly. So guys, my name is Niskarsh Sharma. I'm from Delhi only. I'm from Delhi NCR. Once the slides are up, I'm going to share my story with you. But just to give you an introduction, I'm 29 years old. I run an e-commerce business. I run an education business. Recently, but I got married around 2.5 years back. And I stay with my family, full-time entrepreneur. I got done with my engineering in 2015. I take BTech and then started my business, okay? Right, so my journey started with affiliate marketing in 2012. And I was an engineering student looking for ways to make money online. I just went to Google, searched for ways to make money on the internet. And I stumbled upon a platform called Wealthy Affiliate. किसी ने सुना इसके बारे में? Wealthy Affiliate, US-based company है. I tried different ways to make money using the program that I bought. But unlike you guys, I couldn't make a single penny. I come from a normal lower middle class family background. While I was growing up, we saw constant financial issues. जब तक मैं अपने college second year में था, मेरी फीस पे होती ही नहीं थी, मतलब बहुत लेट पे होती थी. तो आई यूज टू गो थ्रू लॉट ऑफ रिडिक्यूल. अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बेइज्जती मारते थे. फ्रेंड्स यूज टू लाफ एट मी. सो आई यूज टू बी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. आई वॉज वेरी बैड एट स्टडीज अंटिल माई क्लास 10th. Actually class 8th. And then one day my dad and my mom, they made me realize कि भाई तो ये हरकतें करना छोड़ो, शैतानियाँ करना छोड़ो and get serious because you have to do something about your life. हमसे कुछ मत expect करो. We had a lot of loans and we've stayed in rented properties until I was 22. जब तक मैं 22-23 साल का था, हम रेंट पे ही रहे हैं पूरी ज़िंदगी. हमने घर बदले हैं कम से कम 15. हाँ, something around that. So I went to Google. My engineering, I started with my engineering and I realized that engineering is not my cup of tea. How many engineers do we have here, by the way? Engineering students? ठीक है. अच्छा, आप में से कितने लोगों को once you guys got into college, you guys realize कि भाई ये हमसे नहीं होगा, like this is, ये तो बहुत ही weird है, पढ़ाई नहीं होगी या इसके बाद जॉब नहीं होगी. किसी ने फील किया ये? अरे बाकी सब लोग सही है. आपको लग रहा था सही है? हाँ, आपको लग रहा था सही है? हाँ जी, ग्रे कोट. अच्छा, तो MBA से पहले भी तो कुछ किया होगा या डायरेक्ट? अच्छा. So I realized that engineering is not my cup of tea and I started searching for ways. मुझे समझ आ गया भाई इससे कुछ होगा नहीं, ऑनलाइन पैसे कमाने के ways ढूंढते हैं. I got to know about affiliate marketing was the first business that I got introduced to in the world of online marketing. So I joined this platform called Wealthy Affiliate, like I said. I continued trying different ways to make money with affiliate marketing, but like I said, it did not really work for me. And during these years, I also started network marketing. How many of you guys understand what network marketing is? ये सबको पता होना चाहिए. पता है network marketing क्या है? Cool. So I was introduced to network marketing by Mr. Rohit Sharma. I remember he giving me a presentation, Kaushambi. There's a metro station in Kaushambi. He randomly called me, we met, I signed up, I enrolled in the network marketing company. And the next 1 or 2 years were absolutely life-changing for me because I learned a lot about sales, giving presentations, confidence, a lot of things changed. So I'm really grateful to him for that. Eventually in 2015, once my college was getting done, I met someone who was making money by selling books on Amazon Kindle. Everyone understands what Amazon Kindle is, Kindle books. So he taught us how to do that. We did that. We launched a book on Amazon. I made my first $1 from there, 3 साल बाद, जब मुझे पता चला affiliate marketing और इन सब चीज़ों के बारे में. And then what we did, we started teaching people how to build Amazon Kindle businesses. So we made money from there. उसके बाद, in 2016, I remember it was the month of October 2016.
we were 4 co-founders and our company was breaking up. तो हम 2 co-founders ने बोला we cannot work together anymore, so they left the company. उसी दौरान मुझे एक और चीज़ पता चली that my girlfriend from back then was cheating on me. So I was shattered. In that 1 week company टूट रही है, jobs जो थी वो जाने दी, and then got to know that I was in a serious relationship with somebody from Kolkata only. A lot of you guys are from there. So I got to know, yeah, ये तो weird है. So it was one of the lowest points of my life. And then after that, I started figuring ways out to make money online, and I got to know about freelancing. And freelancing के लिए आपको कोई service देनी है. So I got to know about a service called animation videos. So I started an animation video freelancing business, succeeded with it, and उसके बाद हमने लोगों को ये सिखाना start कर दिया कि how can you build freelancing businesses. In 2017 we started with e-commerce, succeeded really well with it, and now since 2019 I've been teaching people how to build e-commerce businesses while running my own. I run a brand called Calvin Ross. It's a clothing brand wherein we manufacture, ship everything we do from Janakpuri in West Delhi to all around the world. In India and mainly in the US, and in the process we also do affiliate marketing, recommending e-commerce related products. So there are a lot of e-commerce related products that we do affiliate for, and we've built an audience. On Instagram, we recently crossed 150,000 followers, and whatever I'm going to share with you, I'm not sharing it to show off. That's not my intention. मेरा दांत टूटा, मैंने ये बता दिया, मैं क्या शो ऑफ करूँगा तुम्हारे सामने, ठीक है? So we've got around 150K on Instagram, over 30K on YouTube. We've got email lists, we've got our own community. So we've been building this for the last couple of years. Now, and I think that all of you guys understand the language of numbers, right? Numbers की language हर कोई समझता है, so I'm going to share some numbers with you just to show you what's possible. And again, I'm not sharing this to show off or anything. 15 से 17 we built an animation video business. We did 70 lakhs in revenue. 17 से अब तक e-commerce 40 crores plus in revenue. 19 से अब तक education business over 10 crores in revenue. These are the kind of results we've been able to generate for ourselves. And in the process, like I said, we teach people how to build e-commerce businesses. Our students have done over 50 crore rupees in revenues for their own businesses, for their own e-commerce businesses. You guys can clap for me. Yeah, thanks. Cool. And today I'm here to help you build a powerful brand called you. A powerful brand called you. Using personal branding and affiliate marketing. And you know what, before we even begin talking about the Gyan and personal branding, understand I get energy from you guys, okay? I really want you guys to give me some energy. I want you guys to show me the energy through your voice, through your claps. So show me how badly you want to build a massive business. Show me that through your claps and your voice. That's it, that's it, that's it. Love it, cool, thank you. And I promise I'm going to be giving you the energy back for sure. So when I started my business in 2021, the biggest mistake that we've made is we continue trying multiple things. Affiliate marketing, building an agency, animation videos, drop shipping, print on demand, CPA, blogging. We've tried a lot of things. अगर 2015 में जो project मैंने start किया होता, अगर मैं उसी पे stick कर जाता, तो I think we would have grown a lot more. Now, although I'm very grateful for where we are right now, but it's important. One thing, you want to build your personal brand. अब वो personal brand कैसे क्या है वो सब we'll talk about that. But stick to what you choose and focus on the process. Initially, instead of taking money targets लेना अच्छा है, लेकिन money targets लेके जब वो achieve नहीं होता ना तो दिमाग खराब होता है. उससे ज़्यादा अच्छा है take action targets. करना क्या है उसके लिए? रिवर्स इंजीनियर, इट्स कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग. 1 करोड़ का वो करना है तो मतलब कितना रेवेन्यू करना पड़ेगा, कितना रेवेन्यू करना है तो कितने सेल करने पड़ेंगे, कितने सेल करने हैं तो लीड्स कितने लाने पड़ेंगे, लीड्स लाने हैं तो व्यूज कितने लाने पड़ेंगे, व्यूज लाने हैं तो कंटेंट कितना क्रिएट करना पड़ेगा. फोकस ऑन द कंटेंट. लोग क्या करते हैं, उल्टा यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 1 करोड़ पीछे क्या है देखा ही नहीं, पता ही नहीं क्या है. मेक सेंस? अंडरस्टैंड, you're not here, you're not into business to just make money in the next 1 year. You're here to make money for the rest of your life. And to do that, you have to play the long-term game. Long-term सोचना पड़ता है, long-term act करना पड़ता है. Keep that in mind. Cool. So guys, here's what I call the personal branding pyramid. इस pyramid का base है आपका personal brand, मतलब आप और आपका content. उसके ऊपर है leads, मतलब वो लोग जो आप पे trust और आपकी respect करें. सबसे ऊपर trust और respect है personal brand में. We started this e-commerce business in 2017. हम वो सब कर रहे थे जो सब लोग कर रहे थे. जैसे आप लोग ने स्टार्ट किया, कहीं से सीखा, मेंटोर लिए, सीखा. पहले 1 साल में ना उस ई-कॉमर्स बिजनेस से हम लोगों ने $1 million क्रॉस कर लिए रेवेन्यू में.
पहले 1 साल में, पहले महीने में $100,000 हो गए थे. आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड वॉज मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अगर वही करता रहूँगा जो हर कोई कर रहा है, हाउ विल आई बिल्ड समथिंग लॉन्ग टर्म. फिर पता क्या होगा, 1 साल में भी जो पैसा कमाया ना, वो अगले साल चीज़ें टेस्ट करने में, इन्वेस्ट करने में चला जाएगा, तो जो कमाया वो भी गया. सो भाई तुम 1 साल में 1 करोड़ और लॉन्ग टर्म ना हो, वर्सेस ऐसा कर लो चाहे 1 साल में 10 लाख आए लेकिन 10 साल तक आए. पर्सनल ब्रांडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म गेम है. आई वुड रेकमेंड ऑल यू गाइस टू फॉलो इट. मैंने अपने पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी में ना मुझे 5-6 साल लगे थे, 40,000 ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, और एड्स भी हमने बहुत चलाई थी. वी यूज्ड टू सेल कोर्सेज यूजिंग एड्स. 40,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स क्रॉस करने में 5-6 साल लगे थे मुझे. यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने में भी इतना ही टाइम लगा था. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बस कुछ भी डाल रहा था, विदाउट प्लानिंग, विदाउट थिंकिंग. मैं जैसे अभी यहाँ खड़ा हूँ, सेशन रिकॉर्ड करके कुछ भी डाल दिया. किसी से जूम कॉल पे बात कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड करके डाल दिया, रैंडम शिट. इस साल जनवरी से हम लोगों ने ना अपनी अप्रोच चेंज करी. 40,000 से अभी हम 150K पे हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स से हम 30K पे हैं. ईमेल लिस्ट टचवुड 25,000 क्रॉस होने वाली है, जो इस साल बनानी शुरू करिए, पुरानी तो भूल जाओ. क्यों? वन थिंग दैट वी चेंज्ड इज, हमने ये सोचा कंटेंट क्या बनाना है, एक्चुअली उससे पहले किसके लिए बनाना है, और फिर क्या बनाना है. ठीक है, ये सब आप लोग को भी करना है. अगर तुम बस हवा में तीर छोड़ोगे, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ यार, देखो, एक होता है तुक्के वाला बिजनेस, मैंने बहुत करे हैं ऐसे, तुक्का लग जाता है बिजनेस में कई बार. एक होता है प्रिडिक्टेबल बिजनेस, कि तुम्हें पता हो कि प्रिडिक्टेबली मैं इसको ऐसे ग्रो कर सकता हूँ. आप में से कितने लोगों को लगता है कि तुम लोग तुक्के वाला बिजनेस कर रहे हो? बी ऑनेस्ट विद मी, आई लव इट. लगता है किसी को? मतलब कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, बस हो रहा है तो गोइंग विद द फ्लो. डू यू गाइस गेट दैट फीलिंग? समटाइम्स, आई एम नॉट सेइंग एवरी डे, समटाइम्स. तो एंड आई नो हाउ दैट फील्स. आप चाहे अच्छा पैसा कमा भी रहे होगे ना, यू गोना हैव अ डिससैटिस्फैक्शन. सेटिस्फाइड ही नहीं होगे कभी, शांति नहीं होगी. एंड आई हैव डेल्ट विद दैट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो बिजनेस को प्रिडिक्टेबल बनाना है, लॉन्ग टर्म बनाना है, तो हम उन चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे. अब बात करना स्टार्ट करते हैं गाइस पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में. दैट्स पार्ट 1 ऑफ टुडे. सो पर्सनल ब्रांड क्या है? पर्सनल ब्रांड कुछ नहीं है, तुम्हारा एक्सटेंशन है जो कि दिखाता है तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या बिलीव करते हो, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा डिजिटल फॉर्म है. दैट्स व्हाट अ पर्सनल ब्रांड इज. पर्सनल ब्रांड बनाने के अलग अलग तरीके हैं. तुम्हें बस लोगों तक पहुंचना है. इंस्टाग्राम करो, यूट्यूब करो, राइटिंग करो, जैसा करने करो. कोई प्रूवन तरीका नहीं है, मतलब कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे हैं. यस, या कूल. नाउ गाइस, क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू थिंक मेक्स एप्पल और गूगल और टेस्ला सच बिग ब्रांड्स? इतने बड़े ब्रांड्स क्यों हैं ये? ट्रस्ट, ब्रांड एक्सपीरियंस एंड वैल्यू. किसने बोला ये वैल्यू? नाइस, यूनिक एंड क्रेडिबिलिटी, जेन्युइन फीडबैक, इनोवेशन. फेयर इनफ. फेयर इनफ. इट्स वैल्यू, एब्सोल्युटली. ये ब्रांड्स ना आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने से पहले वैल्यू दे देते हैं. कैसे? तुम्हें इन्होंने प्रोडक्ट बेचा भी नहीं है, तुम्हें इन्होंने ऑलरेडी एक इतनी वैल्यू दे दी है ना कि तुम्हें अब मन करता है भाई मुझे इसको रेसिप्रोकेट करना है, मेरे को इनको पैसे देने हैं. दैट्स हाउ दीज ब्रांड्स ऑपरेट. I'll tell you how. I give you the example of Apple. When you see Apple products, look at that image. It gives you a feeling of minimalism, class, simplicity, luxury. You start feeling that way. This is value. एक ब्रांड आपको कुछ फील करा पा रहा है. भाई ऐसी दुनिया जहाँ पे इतना डिप्रेशन है, जहाँ पे लोग इतने अकेले हैं, जहाँ पे लोगों को खुद पे अच्छा फील करने के लिए कुछ है नहीं, एक ब्रांड आता है और आपको ये फीलिंग दे जाता है. आप क्यों नहीं लोगे वो प्रोडक्ट? आपको वो ब्रांड ये फील करा देता है, अगर आपने ये ले लिया तो आप एक क्लास अपार्ट लगोगे. आप क्यों नहीं लोगे? अभी तो कुछ बेचा भी नहीं है उन्होंने आपको. लेट्स टॉक अबाउट Amazon. ये जेफ बेजोस के ना कभी इंटरव्यूज देखना. ही टॉक्स अबाउट कस्टमर सर्विस अलॉट. ही सेज कि Amazon का सबसे बड़ा रूल है कि कस्टमर्स फर्स्ट. कुछ हो जाए, कस्टमर्स फर्स्ट. उस बंदे ने इतना ट्रस्ट दिला दिया है कि भाई इतना कस्टमर्स के लिए पागल है ये. इसकी तुम किताब पढ़ लो, इनके तुम इंटरव्यूज देख लो. ही कीप्स टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स. मैं क्यों नहीं खरीदूंगा Amazon से? और Amazon का एक्सपीरियंस भी वैसा ही है. 1 डे डिलीवरी है तो है, रिफंड चाहिए तो मिलेगा. क्लियर कट. लेट्स टॉक अबाउट Elon. Elon is a genius. That's his brand vibe, I feel. वो बंदा जो करता है वो जीनियस है. इन्होंने सबसे पहले पेपैल बनाया.
PayPal को बेच दिया, and then whatever money he made by selling PayPal, I think he invested in Tesla and SpaceX, और फिर रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे. That's a famous story about him. अब इन्होंने ट्विटर बना लिया है, तो खरीद लिया है, ट्विटर को X कर दिया है. Doing crazy stuff. Genius guy, gifted guy. कुछ लोग उसको एलियन समझते हैं, seriously, that he is not from Earth. So ये बंदे को देख के तुम्हें ऑलरेडी, इनके तुम ट्वीट्स पढ़ लो, इनके तुम व्यूज पढ़ लो, तुम्हें लगेगा भाई साहब मतलब क्या बंदा है. जब टेस्ला इंडिया में लॉन्च होगी ना, तुम देख लेना कैसे लोग पागलों की तरह टेस्ला खरीदेंगे. ठीक है. एंड अब तुम मुझे ना इन लोग के बारे में बताओ. चलो कैसा देख, वर्ड्स बताओ, इसको देख के क्या लगता है. मिस्टर शाहरुख खान, क्लास. ठीक है. नेक्स्ट, टोनी, कैप्टन कूल, अंबानी सर, rich, money. And we remember these people and respect them for their own unique stories. शाहरुख खान की एक स्टोरी है, जब वो मुंबई में थे, पैसे नहीं थे, he stayed in a hotel, लोग उस रूम में भी जाते हैं अभी. His stories of struggles are very famous. This is the reason people respect him so much. धोनी की बहुत स्टोरीज हैं कि एक बॉल बची थी, चौक छक्का मारना था, whatever, या विकेट लेनी थी, उसने वहाँ पे वो फील्डर सेट कर दिया. स्टोरीज. अंबानी की सबसे बड़ी स्टोरी कि भाई द फादर डिवाइडेड द बिजनेस इनटू 2 पीपल. अंबानी ने उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो कर दिया. वो डुबा भी सकता था, उसने ग्रो कर दिया और खतरनाक तरीके से किया. स्टोरीज. दिस इज द रीजन पीपल रिस्पेक्ट दीज गाइज. स्टोरीज. And you all have these stories, okay? You all have some unique qualities and unique stories, and today you'll acknowledge yourself for who you are. Because if you want your audience to acknowledge you, you need to start acknowledging yourself first. Acknowledging का मतलब है खुद को appreciate करना अपने experiences के लिए, खुद को प्यार करना अपने experiences के लिए. चलो फिर से अब काम करेंगे. अपना डायरी, पेन, नोटपैड, whatever निकाल लो. इसके बाद तुमने लिखनी है यूनिक स्टोरीज. तुमने आप कोई 5 यूनिक स्टोरी लिखनी है. एक यूनिक स्टोरी तो आप लोगों ने विजुअलाइज करी है आज, वो भी लिख लेना. और तुम्हें 5 और लिखनी है. जैसे मेरी क्या यूनिक स्टोरीज है, नॉट बीइंग एबल टू पे द स्कूल फीस, उससे रिलेटेड एक स्टोरी है. अब पूरी स्टोरी नहीं लिखनी, बस टाइटल लिखने हैं उसके. गर्लफ्रेंड चीटिंग ऑन मी, देखो मैंने तुम्हें बताया था. ठीक है. गोइंग बैंकरप्ट, मैंने वो नहीं बताया शायद, वो भी है. जब कंपनी टूट रही थी ना, हम तभी बैंकरप्ट हो गए थे, 2 लोन लेने पड़े थे. ओके, ये भी एक स्टोरी है. टेकिंग फादर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑनलाइन, ये भी एक मेरे पास स्टोरी है. क्रॉसिंग $100,000 विद इन 1 month ऑफ ई-कॉम, ये बस 5 स्टोरी हैं. ऐसी बहुत सारी हैं. जब आप लोग ऐसे स्टोरीज बताना शुरू करोगे, पीपल विल कनेक्ट विद यू और आपकी सेल्स कॉन्वर्सेशंस में भी आपसे कनेक्ट करेंगे. नाउ प्लीज कंप्लीट द 5 यूनिक स्टोरी टाइटल्स दैट यू हैव. ये सारी स्टोरीज तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी भाई. तुम्हें मजा आएगा कंटेंट क्रिएट करके. अभी क्या होता है, जब हम व्यूज के लिए, एंगेजमेंट के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, वो ना एक जॉब लगने लग जाती है. हुआ किसी के साथ? हाथ उठाओ जरा. किसी को लगता है ये कंटेंट क्रिएट करने में मजा नहीं आ रहा यार, बोर हो गया हूँ, कुछ अलग से यार. मेरे साथ तो बहुत हुआ है. तुम लोग सही हो यार. एनीवे, सो जब तुम इस तरह का कंटेंट बनाओगे ना, यू गाइस विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट. यू विल स्टार्ट टेकिंग इट पर्सनली. अभी हम लोग पर्सनली लेते नहीं है, और मेरे को तो लगता है पर्सनल ब्रांड को पर्सनली लेना चाहिए. बिल्कुल लेना चाहिए. Once you guys are done writing your unique stories with a raise of hands, जिन लोगों ने अब तक बोला नहीं है अब तक, वो ज़रा हाथ उठाएंगे. नहीं उठाएंगे तो मैं पॉइंट करके हाथ उठाऊंगा. तो खुद ही उठा लेना अपने हाथ और बताना. हार्ट बीट्स. चलो एक एक को उठाते हैं अब. लेट्स स्टार्ट विद यू, सेकेंड रो. या यू, स्पेक्स, यू. So any one unique. नहीं आप मैं टाइटल बता देता हूँ, then you can choose. नहीं आऊंगा ना तुम पे आऊंगा. आई एम द इन चार्ज. बैठ जाओ. हाँ, यू. माइक दे दो, आगे पास कर दो. अरे उनको दो ना भाई, तुम क्या यार. हाँ, गो अहेड. Not the awesomeness, I guess, like, but जो भी एज अ पर्सन आई फील आई एम हम्बल, डाउन टू अर्थ. लाइक कोई कभी बोल नहीं सकता आई थिंक कि घमंड है और वो सब चीज़ें. स्टोरी बताओ. अगर नहीं लिखा तो लिखो, मैं फिर आऊंगा तुम पे वापस. स्टोरी, यूनिक स्टोरी. हाँ, यूनिक स्टोरी. यूनिक स्टोरी लिखा है अभी? हाँ लिखा है. बताओ. आई एम नॉट मच कंफर्टेबल इन शेयरिंग. तो एक ही लिखी है क्या? नहीं, लिखी 4-5. अच्छा, 5 लिखी. कोई किसी में कंफर्टेबल नहीं? अबाउट द पेन आई डोंट वांट टू शेयर. कुछ अचीवमेंट वाली है? अरे कुछ भी बताओ ना यार. श्योर. Like in last July, अभी जो जुलाई गया है recently, so I earned 14 lakhs in a single month. So that's so huge for me, especially like एक महीने में at the age of 20, of course बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है.
और एक और चीज़ है, लाइक आई बॉट होम फॉर माई पेरेंट्स आफ्टर लिविंग ऑन रेंट फॉर 12 years. सो दैट्स वन थिंग. क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि लाइक अगर तू नहीं होती तो हम ले ही नहीं पाते, एंड दे हैड टीयर्स रोलिंग डाउन देयर आई That's a story. डाउन द फेस. सो दैट्स वन थिंग. वन मोर थिंग, स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रिप जो हम अभी फेबररी में गए थे विज गुरुकुल की तरफ से ही टू दुबई. सो दैट्स नॉट, मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है कि इट्स सो ह्यूज फॉर पीपल, बट फॉर मी बिकॉज ऐसा कुछ नहीं था कि दुबई, बट ये था कि मेरे घर वालों के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि पूरे ख़ानदान में से पहली लड़की और इतनी छोटी एज में गई, पूरे ख़ानदान में से, मतलब इंटरनेशनल, वो भी स्पॉन्सर्ड, यू नो. सो दैट वाज सो ह्यूज, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को, मेरी दादी किसी को बता रही, सारे रिलेटिव्स में. मुझे ठीक नहीं लगा कि बताओ जा जाके, बट दे वर लाइक कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा हो गया. सो दैट वाज वेरी स्पेशल. Thank you for sharing. Can we clap for her? Great share. Now, guys, just remember there's a difference between achievements and stories, ठीक है? Achievements वाली बातें ना आप ऑलरेडी कर रहे हो सोशल मीडिया पे. There's nothing new with that. जैसे मैंने इतना कमा लिया, मैंने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ठीक है भाई. सामने वाले को क्या मतलब है उससे? कोई मतलब नहीं है उसको. एक टाइम के बाद वो हेट, पता है लोगों को क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ. सोशल मीडिया पे हेट तब मिलता है जब तुम बस रिजल्ट करे जा रहे हो और तुम बता नहीं रहे वो किया कैसे है या बैकग्राउंड क्या है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि बता दिया इतना कमा लिया मैंने, ये नहीं. बैकग्राउंड, लाइक व्हेन शी वाज टॉकिंग शी मेंशन्ड दैट हर पेरेंट्स हैड tears in their eyes when she did something X, whatever she did, ठीक है? या when she was the first woman in the family to go abroad or whatever, sponsored. That's a story. ये लोग इनसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप बस ये शेयर करते रहोगे ना, मेरा इतना रेवेन्यू, पीपल विल नॉट गिव यू रिस्पेक्ट. दे बी लाइक, क्यों स्टाइल मार रहे हो, बताओ ना कैसे किया है. आई एम श्योर आप लोगों को कमेंट्स आते होंगे कि ये सब तो ठीक है, कैसे किया ये बता, चल ये तो अपना कोर्स बेचेगा. होता है ना? नहीं. इफ यू वांट टू चेंज दैट स्टोरीज, वील मूव ऑन टू समवन एल्स. द लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू यू, हाँ प्लीज. एंड सुनो भाई, कोई भी एक स्टोरी बता दो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो. ओके, एनीवन बताओ. ओके, सो सबसे पहले लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बिजनेस एज एन वर्क 12th के बाद ही, तो उसको जैसे स्टार्ट करने के लिए जो फंड्स नीडेड थे मैंने वो जैसे अरेंज करे थे, और उसके लिए सेल्स डालने की कोशिश की थी कैसे वो मतलब आई वॉज जस्ट 12th पास, तो मेरे को कुछ आता नहीं था, और नेबर्स को अप्रोच करके जैसे मतलब वहाँ से सिखाया लोगों ने, मैंने वही कर दिया. और अब समझ आता है कि क्या मतलब मैंने कैसे अप्रोच किया था, कैसे पिच करी थी, तो अब समझ आता है कितना फ़नी वे था और सारी चीज़ें. Nice. बाकी देन आई टुक एडमिशन इन कॉलेज, तो 12th के बाद से ही आई वॉज डूइंग डिफरेंट थिंग्स. तो एक दिन हुआ क्या, मेरी जो क्लास टीचर थी शी गॉट वेरी ऐसा गुस्सा हुई कि आप अटेंडेंस नहीं हो रही आपकी, कॉलेज में आते नहीं हो. तो कुछ दिन तो मैंने मैनेज कर लिया. देन जब रिपोर्ट बनती है शी सेड कि अब पेरेंट्स को लेकर ही आना. तो वन डे आई हैड टू टेक माई मॉम. तो उस दिन उन्होंने मतलब मेरी मॉम को बहुत इस चक्कर में सुना दिया कि आप बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हो वो. एंड आई वाज लाइक कि मतलब मेरी वजह से पेरेंट्स को सुनना पड़ गया. सो दैट वाज लाइक कि कुछ करना है इसको, मतलब पेरेंट्स को सुनना क्यों पड़ा मेरे वजह. Can we clap for her, please? Yeah. Thank you for sharing. It takes guts to share the things like these. Thank you. एंड देन अभी जो फिर ये मैंने बिजनेस किया उसमें आई गॉट प्रमोटेड टू मैनेजर. 1-1.5 साल पूरा किया. देन फॉर सम रीजंस आई वांटेड टू शिफ्ट इट, तो वो सब शिफ्ट करके एकदम ज़ीरो पे आई वाज स्टैंडिंग. तो वहाँ से शिफ्ट करके जब मुझे बस चेंज करना था, सो फ्रॉम दैट पीपल एंड फ्यू पीपल बहुत सारे थ्रेड्स और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी उस टाइम पे. सो आई हैड टू फेस दैट, और विद इन उस पीरियड में फिर यहाँ पर दोबारा स्टार्ट करा. सो ये सब दो स्ट्रगल स्टोरीज है कुछ. बट उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट गुड स्टोरी, तो अभी थोड़े दिन पहले हमारी जो नेबर है वो मम्मी से कॉल पे बात कर रही थी. तो उनकी भी एक छोटी बेटी है, शी इज़ इन 8th आई गेस अभी. तो वो कह रही थी कि मैं भी चाहूँगी भाभी की अगर मेरी बेटी भी बड़े होकर युक्ता जैसी बन जाए. सो या क्रेजी, लवली, ग्रेट. अब देखो भाई, आई हैव गॉट टीयर्स, ठीक है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वरना फनी हो जाएगा. ये होता है व्हेन यू शेयर ऑथेंटिक स्टोरीज. और वहीं से वही वापस आते हैं उस पे, बबलू पे, पैंट ऊपर, बाल गोल्डन. अब तुम इस बबलू को रिस्पेक्ट करोगे या बबली को जो ऐसी स्टोरीज बता रही है? थिंक अबाउट इट. लाइक यू नॉट बबली, जस्ट अ जोक, डोंट माइंड. ओके, देखो भाई, ये होती हैं स्टोरीज. अब
अब इन्होंने जो आज शेयर किया है ना, अभी शेयर किया, उसमें 2-3 छोटी छोटी स्टोरीज हैं. नेबर का कॉल करने वाली स्टोरी है, प्रमोशन वाली स्टोरी है, 12th के बाद सेलिंग वाली एक स्टोरी है. जैसे डोर टू डोर एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैं पहले सेल्स, थोड़ा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, बट डोर टू डोर मैंने सेल्स करी, बहुत स्ट्रगल होता था, समझ नहीं आता था कैसे करना है. एंड देन सो यू टॉक अबाउट द स्ट्रगल, यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट, एंड देन यू ऑफर द सोल्यूशन. दैट इज अ स्ट्रक्चर. चलो थोड़ा सरप्राइज करते हैं यहाँ के लोगों को. तुमने तो बोला है, तुमने भी बोला है, आपने नहीं बोला शायद, तुमने कम बोला है. हाँ तुम बताओ. So my unique story was like mostly everyone over here they know about like my present lifestyle, but none of them don't know about my past, like from my childhood. Okay. So when I'm around at the age of 4 to 5 like that, we don't even have a proper resident, like at least a home, or we don't have even food to eat. Okay. And at that point, people don't believe. Literally, I ate sand which is in front of our home. That is my childhood, and from that situation to till today, I'm running a successful orphanage of 60 kids who are having their dreamed meal. Okay, and we are running a orphanage with 60 kids, and we are taking care of them. And I wanted to build a beautiful school as well as an hostel with all the amenities for free of cost. And the greatest part is we started this one like with my father's name. I started this one at my father grown up village, where he traveled literally 12 kilometers from his village to town to study. So we started this one, and the people over there in that village used to tell like, oh, he's the son of that guy. Wow. So that's my unique story. Great. Thank you. दैट्स वेरी नाइस. नाउ देखो, अब आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग करते हुए स्टोरी शेयर अपने कंटेंट में है नहीं, आई डोंट नो, बट अब ऐसे इन्होंने भी बहुत बहुत ही सही चीज़ शेयर करी है यहाँ पे. जब मैं 4 साल का था तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, और इवन खाना खाना एक चैलेंज होता था. अब मैं एक ऑर्फेनेज चलाता हूँ जहाँ पे 60 लोगों को घर और खाना हम लोग प्रोवाइड करते हैं. दिस इज हाउ आई डिड इट. वांट टू लर्न फ्रॉम मी, सेंड मी अ डीएम. समझ रहे हो? तो तुम्हारी ना रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनको ना नोट करते रहा करो. ज़रूरी नहीं है कि 10 साल पुरानी चीज़ चाहिए, प्रेजेंट की भी हो सकती है. तुम किसी इंसान से मिले और तुमने उससे कुछ सीखा, शेयर करो, शेयर करो. आज तुम यहाँ पे आए हो, मान लो तुमने आपस में कुछ सीखा है, किसी मेंटोर से कुछ सीखा है, शेयर करो, कंटेंट बनाओ, लिखते रहो, कीप राइटिंग योर कंटेंट आइडियाज. एक गूगल डॉक्यूमेंट बना लो. मैं नोशन नाम का एक टूल यूज़ करता हूँ. मैं नोशन पे ना ये न्यूज़लेटर के आइडियाज़ लिखता रहता हूँ कि ये लिख सकते हैं, ये भेज सकते हैं, ये भेज सकते हैं. जैसे जैसे माइंड में अपने फोन में डालते रहो, तुम्हारा कॉन्टेंट क्रिएशन इतना मस्त हो जाएगा ना, और तुम सब यूनिक निकल के आओगे. ठीक है? Now see, when you're building your personal brand, you got to be known for something. किसी ना किसी चीज़ के लिए आप जाने जाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए आज हम लोगों ने नीश और इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करी है. हैव यू गाइस सीन कंटेंट फ्रॉम मिस्टर अंकुर? So when you have a look at Ankur, Ankur is known for writing his books. He's known for financial videos, investment related videos. Recently, family relationships and all content also he's creating for a while. Ranveer, fashion, religion, spirituality. That's what he's known for. When you talk about, let's say, Raj Shamani, then entrepreneurship, relationships, and of course, being Raj. मैंने सबके नीचे mention किया, and being Ranveer, and being Ankur, and being Raj, ये सब. So they are creating content about specific niches, but they're also sharing their stories, sharing their interests, their genuine passions with you all. जैसे कल रणवीर वाला एग्जाम्पल था, ही स्टार्टेड विद फिटनेस, फिर फैशन, स्पिरिचुअलिटी. दीज आर ऑल नीशेस. ही स्टार्टेड विद वन नीश फर्स्ट. सेम आप लोगों को ना पहले एक नीश में अपनी अथॉरिटी बनानी है. आई एम टेलिंग यू द वे आई एम डूइंग इट राइट नाउ. आई एम करंटली इन द ई-कॉमर्स नीश. ई-कॉमर्स इज द नीश दैट आई एम इनटू. अब धीरे धीरे हम और ज़्यादा नीशेस में जाएंगे. दैट इज द प्लान दैट वी हैव. नाउ व्हेन यू डू दिस, यू वुड बी सीन एज अ स्पेशलिस्ट रादर दैन अ जनरलिस्ट. एक जर्नलिस्ट वो होता है जो प्रीटी मच हर चीज़ के ऊपर कंटेंट बना रहा है. स्पेशलिस्ट वो होता है जो एक स्टाइल का कंटेंट बना रहा है, एक पर्टिकुलर फैमिली का कंटेंट बना रहा है. ठीक है? जैसे कोई एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ही बना रहा है तो वो मार्केटिंग की भी बात कर रहा है, सेल्स की भी कर रहा है, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज द मेन कोर अम्ब्रेला फॉर हिम और हर. तुमसे लोग एडवाइस किन चीज़ों के ऊपर मांगते हैं? बताओ, बैठे बैठे बता दो. रिलेशनशिप्स, मनी, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, कंसिस्टेंसी, How to make real virality. virality, time management, productivity, savings, multiple businesses, self-doubt. Anything else? तुम बताओ. हाँ तुम क्या
कंसिस्टेंसी, ठीक है. आप बताओ. वायरलिटी, मनी मेकिंग, ठीक है. गॉचा. और आप बताओ. हाँ जी. लीड जनरेशन. आप बताओ. क्या? हाउ टू यूटिलाइज स्मार्टफोन्स. ओके, कूल. सो आई टेल यू गाइज, आप लोगों को ना अपने पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी में एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो जिसमें आप अच्छे हो, आपको उसमें इंटरेस्ट भी है और लोग आपको उसके लिए लुकअप भी करते हैं. सिंपल. अगर अभी तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब तुम अभी उस स्टेज पे पहुंचे नहीं हो. समझ रहे हो? सो नाउ यू गाइज हैव अ गोल, और ये ना तुम्हें अपने आप से बार बार हर कुछ महीने में रिव्यू करना है. किन चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है क्या उस चीज़ में, और क्या लोगों को वो ज्ञान मेरे से चाहिए. अंडरस्टैंडिंग नाउ. इंटरेस्ट, एडवाइस एंड बीइंग गुड एट. व्हेन यू गाइज, ये इंग्रेडिएंट्स हैं एक बहुत ही अच्छे पर्सनल ब्रांड या एक कंटेंट क्रिएशन बिजनेस के. समझ रहे हो? आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स. जैसे रणवीर अलाहाबादिया है. अब he started creating, he's good with all the spiritual stuff and mythology and all of that. He's good with it. मतलब he's good with researching about it, talking about it. उसका इंटरेस्ट भी है, लोगों को वो पसंद भी आता है. समझ रहे हो? उनके जाके कमेंट्स देखना, लोग सवाल पूछ रहे थे दुनिया भर के. लेट्स टॉक अबाउट अंकुर वारिकू. अंकुर वारिकू फाइनेंसेस में बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्ट भी है, लोग उनसे फाइनेंशियल एडवाइस मांगते भी हैं. समझ आ रहा है? Are you guys understanding what I'm saying? देखो गाइस, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं. या तो तुम हर दिशा में भागते रहो और अंधेरे में तीर चलाते रहो, उससे पैसे वैसे बनते रहेंगे, बढ़िया है, बहुत ही सही है. लेकिन अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है तो यू हैव टू पिक अ डायरेक्शन. दैट्स व्हाट आई मीन. यूर अंडरस्टैंडिंग? यू नीड टू बी नोन फॉर समथिंग. यू डोंट, मैंने क्या बोला, तुम एक ब्रांड हो भाई. हर ब्रांड की एक पर्सनैलिटी होती है. एवरी ब्रांड हैज अ ब्रांड पर्सनैलिटी. हर ब्रांड किसी चीज़ के लिए जाना जाता है. ऐसे हर बड़ा इंसान किसी चीज़ के लिए जाना जाता है. शाहरुख खान एक्टिंग, रोमांस. धोनी कैप्टनसी, क्रिकेट. और बताओ किसी का एग्जाम्पल दो. सैफ अली खान, वो क्या, पटौदी, प्रिंस, हाउस ऑफ पटौदी, ही इज द प्रिंस राइट, पटौदी पैलेस. शाहिद कपूर, वायलेंस. विराट कोहली, डिसिप्लिन. बोलो. Hrithik Roshan, dance. Every successful person you know, every successful personal brand you know about is known for something. ठीक है? I want that eventually when you guys start creating content, आपको किसी एक चीज़ के लिए जाना जाए. At least शुरू में जब तुम grow कर रहे हो, फिर तुम और चीज़ों में जाओ ना धीरे धीरे. Ask yourselves guys, देखो, अपने आप से सवाल करो, why do you, तुम मुझे खुद बताओ, ऑडियंस बार बार आके तुम्हारा कंटेंट क्यों देखे? चलो कोई बताओ मुझे, कोई क्यों देखे? बोलो. वैल्यू प्रोवाइड करिए. देखिए, अब क्या वैल्यू 10 चीज़ों की दोगे या कोई एक चीज़ होनी चाहिए या दो? एक चीज़ होनी चाहिए ना. अब मान लो मैंने आज एक ई-कॉमर्स की वीडियो डाल दी, 10 ई-कॉमर्स की वीडियो डाल दी, फिर मैं रिलेशनशिप्स की भी बात करने लग गया, फिर मैंने बात करने लग गया फिटनेस के बारे में, तो लोग बोलेंगे क्या पागल है क्या ये? डिवाइड होती रहेगी. करेक्ट? सो इसलिए ना देखो, इनिशियली इन योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी किसी एक सॉर्ट ऑफ कंटेंट बना के ऑडियंस का ट्रस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए ये सारी सरखपाई आज यहाँ करी जा रही है. समझ रहे हो? आसान नहीं है ये, पीपल स्किप दिस स्टेप. लेकिन ये चीज़ शॉर्ट है. तुम जिस भी बड़े पर्सनल ब्रांड का मुझे एग्जांपल दे दो, वो पहले किसी एक नीश में बहुत बड़ा बना है. किसका एग्जांपल दोगे? टेल मी योर फेवरेट पर्सनल ब्रांड्स. बियर बाइसेप्स, ही ग्रू विद फिटनेस. उसने वो बेस बनाया एंड देन ही जस्ट स्केल्ड. कोई और बताओ. टेक बना, टेक्नोलॉजी, क्रेजी, यू नो, ही इज नोन फॉर टेक्नोलॉजी, दैट्स हिज नीश. अब वो टेक्नोलॉजी में फोन्स भी कर रहा है, वो लैपटॉप्स भी करेगा, वो कुछ भी करेगा. समझ रहे हो? लेकिन हर चीज टेक्नोलॉजी अम्ब्रेला के नीचे है. राइट? और बताओ. हाँ, बी यूनिक, कॉमेडी. सो यू गाइज अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. देखो भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जिन लोगों के अभी हम नाम ले रहे हैं, उस वाले लेवल पे जाना है या तुम लोग को यहीं रहना है? देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवर्स इंजीनियर व्हाट दीज सक्सेसफुल गाइज हैव डन. इन सब लोग, तुम नाम लो, एक वर्ड आता है, नीश समझ आ जाती है क्या है. ठीक है? एंड इन लोगों ने ना ये चीज़ें आइडेंटिफाई करी, किन चीज़ों में अच्छे हैं, इनका इंटरेस्ट भी है और लोगों को भी वो ज्ञान चाहिए. दैट्स व्हाट दीज गाइज फिगर्ड आउट विद टाइम. टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं. नीश का मतलब तुम समझ गए ना, क्योंकि हमने अब तक सिर्फ बातें करी हैं नीश 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 पकड़ने की, और तुम्हारी नीश एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस नहीं है. ठीक है? आगे बढ़ना है. अब यहाँ तक करके आगे हो, बहुत बढ़िया है. लेकिन अगर अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो कुछ और ज़्यादा नीश डाउन करना पड़ेगा. मेकिंग सेंस? और याद रखना, जो करके यहाँ पे आए हो
उसको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, वो छोड़ना नहीं है, करो लेकिन बेटर तरीके से करो। जैसे बोलते हैं ना, बिजनेस को 0 से 1 करोड़ लेके जाने के लिए कुछ स्टेप्स लगते हैं, वही स्टेप्स 10 करोड़ पे नहीं लेके जाएंगे। 1 से 10 जाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, लेकिन वो छोड़ना नहीं है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, वो छोड़ देते हैं, सोचते हैं कुछ अलग ही कर देंगे। नेवर एवर मेक दैट मिस्टेक। देखो, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए ना मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती हैं। मार्केटिंग, ठीक है, सेल्स, अपने प्रोडक्ट को बेटर करना पड़ता है, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कस्टमर सर्विस। तुम लोग पता क्या करते हो? मार्केटिंग, 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 मार्केटिंग और मार्केटिंग। ये तो कर रहे हो तुम लोग। रील्स बना देते हैं, चलो सेल्स कर लेंगे, लीड्स आ गए, सेल हो गया, 1 करोड़ इनकम, वेरी गुड, चलो 1 करोड़ इनकम की रील बनाता हूँ, 1 करोड़ इनकम, वेरी नाइस, ग्रेट। उसके बाद आफ्टर कस्टमर, जब बंदे ने खरीद लिया, वो लॉस्ट है, तुम्हें नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कैसा है, तुम्हें मतलब ही नहीं है। ज़्यादातर तुम मतलब नहीं है एक्चुअली, 5-6 क्या होते हैं 40 के बैच में, तुम्हें मतलब ही नहीं है। ऐसे नहीं बनते भाई बिजनेस। ये आईफोन और ये तुम जो भी बड़े से बड़ा ब्रांड उठा लो, उनकी कस्टमर सर्विस पता है कैसी है? फीडबैक कॉल्स करते हैं पूछने के लिए, ठीक है। अब जैसे तुम बोल रहे हो लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, आई एम नॉट सेइंग फोर्स मत करो, बिल्कुल सही बात है। अब सामने वाला बंदा बोल रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है एक्शन लेने का, क्या करोगे आप? लेकिन क्या आपने उनसे 1-on-1 एक बार भी पूछा हाउ इज इट गोइंग, डीएम करके? गाइस, सुपर इंपॉर्टेंट। और अगर पूछा भी, देखो क्या आपने कहीं कोई शीट बना रखी है जहां उनके नाम लिखे हैं, उनके ईमेल लिखे हैं, उन्होंने कब ज्वाइन किया ये लिखा है, उनको उनसे फीडबैक लिया या नहीं लिया वो लिखा है? नहीं यार, द पीपल दैट यू आर सेलिंग टू, वो तुम्हारे कस्टमर्स हैं, वो रेफरल नहीं है तुम्हारे, दे आर योर कस्टमर्स। उन्होंने तुम्हारे नाम पे चीज खरीदी है, समझ रहे हो? योर नेम इज एट स्टेक। और अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, वो वापस तुम्हारे पास आए, तुम्हें वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मिले, यू गॉट टू टेक केयर ऑफ देम। डूइंग लाइव कॉल्स, हैविंग ग्रुप्स इज वन वे टू डू दैट। मेंटेनिंग देयर शीट्स, आई एम नॉट, देखो एक्स्ट्रा एफर्ट है, 40 में से शायद 1 या 2 लोग करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं जो करेगा उसका तुम इनकम देख लेना। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ज़्यादातर लोग करना ही नहीं चाहते, वो कस्टमर्स की केयर कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? यस और नो? समझ आ रहा है? अ स्ट्रॉन्ग अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस और अ पर्सनल ब्रांड ना 4 पिलर्स पे टिका है। पहला पिलर, अपने लोगों को कभी रेफरल मत बोलो, वो तुम्हारे कस्टमर्स हैं, और मैं बार बार तुमसे उस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। दूसरा, तुम्हें वैल्यू देनी है, लोगों की हेल्प करनी है। देखो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मैं गारंटी कर रहा हूँ 99% पीपल विल नॉट डू दीज थिंग्स। उनको लग रहा है अभी सब बढ़िया चल रहा है तो आगे भी सब बढ़िया चलेगा, होगा 99% के साथ। 1% लोग निकल के आएंगे जो इन चीज़ों पे एक्शन लेंगे, जो सीरियस बिजनेस बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म पे ग्रो करेंगे, और आप बाकी सब लोग जलोगे उनको देख के, बोलोगे दे गॉट लकी। वो लकी नहीं होंगे, वो ये सारी चीज़ों पे ना फोकस कर रहे होंगे। आप में से कौन कौन है जो एक्चुअली में अब चीज़ें चेंज करने वाला है अपने बिजनेस में? ज़रा हाथ उठा के बताओ। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट, मेक जेन्युइन रिकमेंडेशंस, कीपिंग द कस्टमर्स फर्स्ट। आप में से कितने लोग हैं जिनको पता था कि इस कस्टमर को मुझे नहीं सेल करना चाहिए, लेकिन तब भी कर दिया? हो सकता है शुरू में कर दिया हो, है कोई? मैंने भी किया है। कितने लोग करते हैं? वी ऑल डू इट, बिकॉज हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं। आई टोटली गेट इट। अब आप सब लोग एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है भाई इतने ज़्यादा जैसे पहले थे, तो तुम्हें ना जेन्युइन रिकमेंडेशंस करनी है और अपने कस्टमर्स को पहले रखना है, और तुम्हें उनका ध्यान रखना है, जो मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ। ठीक है, रेफरल्स नहीं है, तुम्हारे कस्टमर्स हैं, वैल्यू देनी है, हेल्प देनी है, रिकमेंडेशंस करनी है, कस्टमर्स को पहले रखना है और फिर उनका ध्यान रखना है। दिस इज रियल सेल्स गाइस, ये होती है सेल्स। सेल्स का मतलब ये नहीं होता बेच लिया, कमीशन आ गया, आई मस्ट स्टार्ट, दैट्स नॉट फकिंग सेल्स। तुम लोग बोलते थे ना बेचना, दैट्स नॉट सेल्स। उसको तुम कमीशन कमाना बोल लो। सेल्स इज समथिंग एल्स। लोगों का ध्यान रखना, और अगर कोई गलती हुई उस चीज़ को मानना, उससे लड़ना नहीं कि नहीं तूने नहीं देखा मैं क्या करूं, नहीं, समझो कस्टमर है भाई, 15,000 रुपए दिए हैं। रिमेंबर गाइस, सेल्स का एक रूल है, यू वांट टू मेक जेन्युइन रिकमेंडेशंस एंड यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर पीपल।
सेल्स का मतलब है मेकिंग जेन्युइन रिकमेंडेशंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर पीपल ओनली इफ यू कैन. Only if you can. What did I just say? Only if you can. Making sense? समझ आ रहा है? Yes or no? Yes or no? Do you want me to show you a sales conversation structure you guys can follow? जब तुम sales conversations करो, ये सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए तो क्या करना है? दिखाता हूं. देखो, एक फ्रेमवर्क है जिसको बोलते हैं द डॉक्टर फ्रेमवर्क. ठीक है, इस फ्रेमवर्क के ना 4 पार्ट है. पार्ट 1 बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपो. रेपो का मतलब होता है बातचीत स्टार्ट कर ली, स्मॉल टॉक, हाय हेलो, कहां से हो. पार्ट 2 अंडरस्टैंडिंग देयर गोल्स एंड प्रॉब्लम्स. चाहते क्या हैं वो लोग, उनकी दिक्कतें क्या हैं. पार्ट 3 क्वालिफाइंग देम. क्वालिफाइंग का मतलब समझता है कोई? सेग्रीगेट करना. और क्या है क्वालिफाइंग का मतलब? राइट ऑडियंस है या नहीं. और बताओ क्वालिफाइंग की मतलब कि क्या वो बंदा मेरे प्रोडक्ट के लिए सही है या नहीं. इफ यू आर ऑन द सेम पेज और नॉट. इज माई प्रोडक्ट गुड फॉर देम और नॉट. आर दे गुड फॉर मी और नॉट. दैट्स कॉल्ड क्वालिफिकेशन. ऐसा नहीं कि किसी को भी बेचो, नहीं. एक पर्सनल ब्रांड है भाई. एटीट्यूड रखो. एक पार्ट 4 शेयरिंग द सोल्यूशन, पिचिंग द ऑफर. ये है एक सेल्स का स्ट्रक्चर जो तुम्हें फॉलो करना है. सबसे पहले building trust and repo, understanding their goals and problems, qualifying them, sharing the solution. And overall mindset तुम्हें यही रखना है यार. देखो, you guys cannot handle everything yourselves. You have to build a team if you guys want to free up your time, if you want freedom. That's the mindset. Trust the person you hire, judge them. एक बार में शायद अच्छा इंसान ना मिले, multiple tests लगें, but you have to start expanding your team. And that's pretty much it, you know. I just had to share these things with you today. I'm pretty much done with what I wanted to tell you. Now, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने तुम लोग से शेयर करी हैं, काफ़ी कुछ है. If you guys want this presentation, I can share it with you all. अगर आप आगे देना चाहते हो, और ये रिकॉर्ड तो आप कर ही रहे हो सारा. So, overall what I'm going to say is guys that मैंने सब बार बार रिपीट कर ही दिया वैसे, but focus on building a very strong personal brand. Identify a niche for yourself. Take care of your customers. Don't just think that you're running an affiliate marketing business. You're actually building something that's very close to your heart, right? और अपने नाम का बहुत ख्याल रख के चलो, because you are the brand. Okay, and that's pretty much it. I'm pretty much done. Thank you so much for having me. I hope you guys had a good time. Yeah. So, बढ़िया. So, did you guys truly enjoy today's session? 100%. मजा आया? पक्का? If I unintentionally hurt anybody, I'm sorry, not my intention. That's just my style of talking. But lots of love for you guys, lots of love for you. You guys got to clap for them actually. We've done multiple meetings. इन्होंने मेरे से कितने follow-up लिए हैं, कितना कुछ बताया है, ये बताना है, वो बताना है, ये problem है. These guys are actually taking a lot of pain to help you guys level up. So thank you to you guys from their behalf also. And thanks for having me guys. Thank you.